We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all for? We don't talk anymore like we used to do. I just saw you found I wanna be looking. You were looking for. I wish I would've known that was me. Just the way you did so easily. Don't wanna know if you're wearing just tonight. Just look into your just say the way I looked before. I always, always such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was up before? We don't talk anymore like we used to do. I just every now and then think you might want me to come short at your door. But I'm just so afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you look into your eyes. You're holding on you so tight, the way I did before. Right all the time, you're holding on you so tight. Look to do, and we don't love anymore. What was all it for? We don't talk anymore like we used to. Like we used to do. I did the same thing I told you that I never would. I told you to change, even when I know I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, stay. Yeah. I can't drown week over weeks just to realize. Can't feel the way I feel like I'll be the light, and I'll be messed up if I get it right. And I'll be messed up if it can be right. You're at the same thing I told you that I never would. I told you to change, even when I know I never could. Know that I can't find nobody else like you do. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I did the same thing I told you that I never would. I told you to change, even when I know I never could. Know that I can't find nobody else like you. Say it when I'm with you, miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust. I know I'm afraid that I mess it up. I know that I can leave you straight in, 'cause then anybody leave you in it. And you know that I know that I need to stay. I do the same thing I told you that I never would. Never change you when I know I never could. And then I can't find nobody else like you. So you need to stay, stay.
you sing along. 1, 2, 3, 4. The next warm-up is based on the interval of thirds. Here's how it goes. Now, your turn. 1, 2, 3, 4. Mom. Now, your turn. 1, 2, 3, 4. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, mum, mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. Mum, 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 mum. For the fourth warm-up, La 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 la. Hello everyone, my name is Shireen Ahmed. I'm 15 years old. I live in Bodh Gaya and just now I've completed my 10th grade and going to forward to my studies, and also my passion is about singing, so my dream is to be an international singer. So I hope you all will support me and make me my international dream come true. ये कैसे सीखती हैं, कहाँ से प्रेरणा आई अंग्रेजी सॉन्ग के लिए? So first of all, I wasn't have any knowledge about how to sing American accent singing songs, so I got an American teacher. Her name is Ella Ray from the social media. उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी है, मेरे को मेन पॉइंट्स बताए हैं. वो वीक में एक दिन मेरे को हेल्प करती थी और मेन वोकल्स के लिए वीडियो भी देती थी कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है. और उन्हीं सबको प्रैक्टिस करके मैं हमेशा सिंगिंग की प्रैक्टिस करती थी. और फिर प्रेरणा मेरे को मेरे फेवरेट सिंगर से मिली है. जस्टिन बीबर, अरियाना ग्रांडे, एडली, कैमिला कैबेल, यही सब सिंगर्स हैं जिनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है. कोई
मतलब फिजिकली ऑफलाइन भी कोई ट्रेनिंग देते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से? फिज़िकली मेरे को अभी कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ढूंढी भी थी पर ज़्यादा मिल नहीं सका कोई इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए। और सोशल मीडिया में मेरे को मिल गई थी, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और वो मेरे को सपोर्ट भी करती थी, तो थैंक यू सो मच। तो जो परफॉर्म करती हैं कहाँ सोशल मीडिया पर, तो उसके कौन लोग देखते हैं, कौन लोग उसको लाइक करते हैं? बेसिकली मैं अपलाइव एक ऐप है सोशल मीडिया जिसमें 50% इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। मैंने उसी में परफॉर्म करती हूँ और मैक्सिममली 20 to 25,000 लोग लाइक्स आ भी जाते हैं। और मेरे को देखने के लिए तो बहुत अलग कंट्री से भी सब देखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरबिया, ये सब कंट्री से मेरे को भी सपोर्ट भी करते हैं और देखते भी हैं। कोरिया से मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है क्योंकि कोरिया से तो मेरे फ्रेंड्स भी और बोलते हैं कि मैं कोरियन सॉन्ग भी गाऊँ ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। क्या एम है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? मेरा एम है इंटरनेशनल सिंगर बनना और इंडिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, इंडिया को प्राउड दिलाना मेरा बहुत बड़ा सपना है। गवर्नमेंट से या सोसाइटी से क्या हेल्प चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहूँगी कि वो मेरे को परफॉर्मेंस करने के लिए चांस दे, मेरे को आगे बढ़ने का मौका दे, और सोसाइटी से मैं ये कहूँगी वो मेरे को सिर्फ सपोर्ट करे। ये मतलब इंग्लिश गाने का कहाँ से मन में आया था, कोई बताया था या? इंग्लिश गाने के लिए तो वैसे मैंने पहले कभी भी इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं गाई थी, मैं बचपन से बस सुनती थी इंग्लिश सॉन्ग्स। और फिर आगे जाके 8th ग्रेड से मैंने इंटरनेशनल सिंगर्स जब टीवी में देखी थी तो फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा था और फिर 8th ग्रेड से ही मैंने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी। और 2019 से मैंने अपने यूट्यूब में सोशल मीडियाज़ में वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दी। अभी तक अगर फॉलोअर की बात करें तो कितने फॉलोअर हैं? अभी तक तो मेरे 2,400-500 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे मोर देन 3,000 हैं और मेरे फॉलोअर्स भी अलग अलग कंट्रीज स्टेट से हैं। कब से गाना शुरू की थी? मैंने गाने के लिए तो बचपन से तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहती थी, पर गाने के लिए तो 8th ग्रेड से मैंने स्टार्ट किया। परफॉर्मेंस करना, अपलोड करना सोशल मीडिया में वीडियो, सब कुछ 8th ग्रेड से स्टार्ट किया। कहाँ पढ़ती हो और वहाँ पर क्या माहौल है? मैं बोधगया के स्कूल में पढ़ती हूँ और वहाँ पर मीन्स इंग्लिश तो हर स्कूल का हैबिट होता ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, पर वो पे इंग्लिश सिंगिंग का नहीं होता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब इंग्लिश का सिंगिंग की थी स्टेज पे, तो यही था रिएक्शन सबका भी यही था कि ये फर्स्ट टाइम गा रही हो, इंग्लिश सॉन्ग तो ये बहुत ही एकदम डिफरेंट है। तो उस टाइम भी मेरे को सपोर्ट भी मिला मेरे स्कूल से भी, और स्कूल में तो मेरा निकनेम ही बन गया था इंग्लिश सिंगर करके। बोधगया इंटरनेशनल जगह है, यहाँ पर लाखों विदेशी लोग आते हैं, तो क्या उसके वजह से भी मन में लगा कि कुछ ऐसा करें कि विदेशों तक नाम आए? मेरे को बोधगया के इंटरनेशनल की तरह से तो नहीं लगा था कि मैं ऐसे करूँ, पर मेरे को ये लगता था कि मैं उन सब के सामने अपना टैलेंट ज़रूर निकालूँ ताकि वो लोग मेरा भी टैलेंट देखें और फिर सोचे कि इंटरनेशनल लोग का जगह है यहाँ पर आने का, तो फिर इंटरनेशनल टैलेंट भी रहेगा। ठीक। मेरा नाम शबीना अहमद है। अच्छा, आपकी बेटी अंग्रेजी सॉन्ग गाती है, तो कैसा आपको लगता है? ये बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। कब से ये गा रही हैं? और ये तो 5-6 साल पहले से थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुना रही थी, अपना सुनती थी मोबाइल में, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि ये क्या कर रही है। मगर 2 साल पहले इसके अब्बू जब सुने इसको गाना गाते बहुत अच्छा तरह से, तो बोले कि ये तो बहुत आगे बढ़ सकती है, ये अपना फ्यूचर भी बना सकती है इसमें। तो फिर इससे पूछा गया शरीरा से कि तुम क्या करना चाहती हो, तुमको अच्छा लगता है ये गाना गाना? तो बोले कि हाँ, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हिंदी हमको नहीं पसंद है, हमको इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश गाना गाना सुनना। तो हम बोला कि तुम इसी में करियर बनाओ, तो अगर तो फिर ये अपना शुरू कर दी गाना गाना सुनना। अब लोगों को शाबाशी मिलता है तो आपको किस तरह से मतलब फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये नाम रोशन करेगी दुनिया में। पहले तो लगता होगा कि टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं, वैसा नहीं लग रहा था, मगर लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा ही कर रही, इंग्लिश बोलना। और नहीं, अमूमन जो गार्जियन होते हैं उनको लगता है कि बच्चे पढ़े लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हाँ, वो कुछ थोड़ा सा फीलिंग आया था, मगर हम लोग ऐसे परेशान कि जैसे बच्चा जो अगर करना चाहे, बच्चा की जिस चीज़ में खुशी है उसी में हम लोग सपोर्ट करेंगे। अब ये बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तुम कुछ और पढ़ कर करके बनो, बच्चे की जिस चीज़ में खुशी है उसी में आगे बढ़े। अपना परिचय बताइएगा।
जी, मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है और मैं शरीन अहमद का फादर हूँ। अच्छा, ये कब से ये गाना गा रही है? आप लोग का रिएक्शन क्या मतलब होता होगा उस समय? देखिए, हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे और ये बचपन में दिल्ली में रही और अक्सर क्या होता था कि हम लोग आर्ट एग्जीबिशन में जाया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि बहुत से फॉरेनर लोग आते थे पेंटिंग देखने के लिए। तो उसी में कई देश का एम्बेसडर जो आता था तो वो हमारी लड़की से भी मिलता था, हेलो हेलो करके बात करता था। तो ये भी बात करती थी, मतलब रिएक्शन देती थी। उसके बाद वहीं के स्कूल में ये इंग्लिश में गुनगुनाती थी तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या कर रही है, लेकिन कुछ अवार्ड भी लेकर आ जाती थी। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि हम लोग फिर गया, यहाँ पेरेंटल जगह है तो यहाँ आ गए और यहीं पे नाम लिखाया। तो क्या हुआ कि 8th ग्रेड में इसके स्कूल में एक परफॉर्मेंस हुआ, उसमें ये पार्टिसिपेट की और इंग्लिश में शायद गाना गाई, जिससे वहाँ पे एकदम से निकनेम इसका इंग्लिश सिंगर हो गया और अवार्ड लेकर आई दिखाई। हम लोग बहुत खुश हुए कि वाह, ये तो एक नई राह है। तो हम लोग तो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते सही से, तो इंग्लिश में गाती है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग झारखंड में गए अभी रिसेंटली एक NGO के थ्रू, और वहाँ पे लोगों ने देखा और सुना, और उसके बाद झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष उन्होंने बुलाया अपने इसमें स्पीकर हाउस में, और सुनकर उन्होंने अवार्ड दिया। अवार्ड देने के साथ ही उन्होंने ऑफ़र भी दे दिया कि आप बेटा एक गाना बनाओ झारखंड स्टेट पे और यूथ पे, जो हम इसको हमारे प्रदेश के लिए रिप्रेजेंट करे वो गाना, और इस गाना जब बन जाए तो हम विधानसभा में वहाँ पे गवाएंगे सारे माननीय के समकक्ष में। तो इससे हमको एकदम से प्राउड फील हो गया। हमें लगा कि ये तो एक नई एक अजूबा चीज़ होने जा रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और यहाँ के भी लोगों को पता चलने लगा, मीडिया लोग भी बहुत सारे आने लगे, कवरेज हुआ। लेकिन चूँकि बिहार में अभी हम लोग को कोई नहीं जानता था, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ कि बिहार के भी अगर गवर्नमेंट अगर इस तरीके से अगर सपोर्ट करे, क्योंकि बोधगया एक इंटरनेशनल प्लेस है और यहाँ हर साल देखते थे कि एक फेस्टिवल होता था। फेस्टिवल होता है हर साल बुद्ध महोत्सव नाम से, और उसमें देखते कि 70% जो होते हैं फॉरेनर ही होते हैं, और उसमें सिंगर क्या बुलाए जाते हैं, हिंदी और तरह तरह के बुलाए जाते हैं, जो कि उसको समझ में नहीं आता है। तो हमने ये चीज़ अभी से फील आया कि अगर इस तरीके के आयोजन के लिए बिहार सरकार अगर इस तरीके की बिहार की बेटी को, और ख़ासकर बोधगया की बेटी को अगर मौका दे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बिहार के लिए भी और इस बेटी को लिए भी। तो मैं यही आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार सरकार प्रोत्साहन दे तो बिहार का भी नाम रोशन करेगी और भारत का भी नाम रोशन करेगी, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोफाइल साउथ अफ्रीका के मैगजीन ने छापा और उसका लिंक भेजा, तो हम लोग पढ़ के बहुत खुशी हुई। और फिलीपींस की रेडियो ने भी इनका इंटरव्यू प्रसारित किया और इसका गाना प्रसारित किया, तो उससे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि दूसरे देश के लोग इनके गाना को, इनको इंटरव्यू लिया जा रहा है, जबकि हम ऐसे जगह में हैं जहाँ पे इंग्लिश तो बोलना समझना बहुत दूर की बात है और बहुत पिछड़ा जगह पे हम रह रहे हैं, फिर भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो यही दुआ करते हैं और खुशी होगी कि आगे बढ़े। आप करते क्या हैं? मैं वैसे प्राइवेट वर्क करता था, जॉब करता था, और हालांकि कोरोना के टाइम में तो सारा डिस्टर्ब हो गया, तो उसका मार हम भी झेल रहे हैं अभी यहाँ पे। लेकिन अब रास्ते इनके एक नए बने, तो हम लोग अब फिर से दिल्ली जाने वाले हैं और इंशाल्लाह आगे इसको शोहरत दे, देश को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। कभी आप चूँकि पिता हैं तो आपकी बेटी मतलब इस फील्ड में जा रही है, तो कभी मन में ये लगा, चूँकि यहाँ पर रूढ़िवादिता भी है हमारे समाज में? देखिए, पहले तो ख्वाहिश होती थी कि मेरी लड़की पढ़कर डॉक्टर बने, और हर गार्जियन का यही सपना होता है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने या IAS बने, इस तरीके का सोच था। लेकिन जब इसने टैलेंट देखा तो मैंने सोचा कि अगर ये तो एक सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी के आगे तो सारी चीज़ पीछे हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर इसमें टैलेंट होगा तो हम क्यों रोकें, हम नहीं रोक सकते हैं। अब रहा कि
समाज भी रोकता है, हालांकि घर में भी बहुत सारे रोक के तरह तरह के बोलने लगे कि ये क्या है, डॉक्टर बनना चाहिए था, ये इंजीनियर बनना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ अगर इसके पास है तो उसको सामने आना चाहिए।